So this is October-November 2024, paper 2, variant 3, section A. Now section A is a data response. ठीक है? The global coffee bean selling prices reach a new high. तो bean coffee उसकी selling prices के ऊपर है. Coffee is a big business, especially in the United States. The global market was worth nearly US $110 billion in 2020, with production around 10 million tons of coffee beans. 95% of this production came from thousands of small scale producers in the South America, Central America, Asia, and Africa. If the trends continue, the production is forecast to triple by 2050. मतलब कॉफी के यूजर्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. ठीक है. The Arabica coffee bean selling price was at a 10-year high in January 2022, having more than doubled in 2021. Figure 1.1 shows the world selling prices of coffee in the United States, dollar per pound, LB weight. A pound is 454 grams. ठीक है. इससे मेरे को यहाँ पर डेटा दिया हुआ है. ठीक है. यूएस डॉलर पर एलबी दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं. ओवरऑल ट्रेंड देख लो, खाली इतनी लंबी नहीं करना, बस ओवरऑल ट्रेंड देख लो. यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही हैं. बस बहुत तेज फ्लक्चुएशन यहाँ पर आई थी. अगर सवाल होगा तो हम देख लेंगे, वरना ओवरऑल ट्रेंड तो ये है कि प्राइसेस बस बढ़ रही हैं. शुरू का और एंड का देख लिया करो बस. अगर इसका सवाल आता भी है ना कि बता दो क्या हो रहा है, तो तुम बस एक ओवरऑल ट्रेंड बताना कि यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, और बीच में कोई ऐसा इवेंट बता दो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है. अब जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है इस इवेंट में, अगर आप देखो तो. पर अगर सवाल होगा तो देख लेंगे, लंबी करने का फायदा नहीं होता बेवजह. सो हाउ कैन दिस ह्यूज सेलिंग प्राइस इंक्रीज बी एक्सप्लेन्ड. मतलब क्यों इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं. द मेन कॉज वाज अ सीरीज ऑफ वेदर इवेंट्स अफेक्टिंग ब्राजील, the world's largest supplier of high quality Arabica coffee beans. Its market share is 35% of the total global supply. There was severe drought in early 2021 that reduced the number of cherries which contain the beans on coffee bushes. तो क्लियरली एक चीज समझ आ रही है, बस वेदर इवेंट्स हैं. वेदर इवेंट्स की वजह से जो है वो सप्लाई कम हो गई है, और सप्लाई कम होने की वजह से इसकी शॉर्टेज हो गई है, और उस शॉर्टेज की वजह से ये बीन्स जो है वो महंगी हो गई. सिंपल है. ठीक है. लाइबा सवाल आएगा तो यूज करेंगे, वरना फायदा नहीं है. सवाल देखेंगे तो बताता हूँ. The crop yield was further damaged by frosts that followed the drought. As a result of these weather events, Brazil produced its smallest volume of quality coffee beans for 10 years. So दो events हुए, एक drought आया है और एक frost आया है. इन दोनों वजह से supply कम हुई है, which led to shortage, which increased the price. ठीक है, simple. In addition, the production of cheaper, low-quality Robusta coffee beans in Vietnam was badly affected by storms, which stripped the bushes of their cherries. Overall, there was a very large decrease in the global supply of all coffee beans. वियतनाम में भी मौसम का मसला आया, ब्राजील में भी मौसम का मसला आया. दोनों की वजह से सप्लाई कम हो गई और कॉफी बीन महंगी हो गई है. Supply issues affecting major producing countries like Brazil and Vietnam mean that the volume of coffee beans produced regularly fluctuates between high years and low years. The producers try to reduce the risk through buffer stock schemes. Buffer stock schemes याद है? Buffer stock schemes एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस को रोकता है. At the time of surplus, the government buys the surplus. सही है, ताकि प्राइस इतनी कम ना हो. एंड एट द टाइम ऑफ शॉर्टेजेस वो अपने माल को रिलीज करता है ताकि मार्केट में प्राइस ना बढ़े. तो प्राइस को फ्लक्चुएशन से रोकने के लिए बफर स्टॉक स्कीम रन करी जाती है, जहां पर गवर्नमेंट जो एक्सेस स्टॉक होता है उसको बाय करती है, और जब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो स्टॉक को रिलीज कर देती है. तो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैंडल हो जाती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम. This type of scheme is particularly important for the many small scale subsistence producers who have no other source of income. The dramatic weather events of 2021 have been exceptional, although a few large-scale producers in Brazil who survived the immediate impact of the drought and frost should gain from the huge rise in the price of coffee beans. जो producer ने survive कर लिया, जिस producer की supply पे इतना impact नहीं आया, उसने high prices पे चीजें बेच के अपना revenue कमा लेना है. But what about the thousands of other suppliers elsewhere who lack the power in the market? The most likely outcome is that they will once again become the victims of the unpredictable global market for coffee beans. जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो फंस जाएंगे. सीधी साफ बात है. कोविड के टाइम पे यही हुआ था, जिन बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया उन्होंने दबा के कमाया, जो नहीं कर पाए, जो एडजस्ट नहीं कर पाए, वो फंस गए. अच्छा, पार्ट ए कह रहा है यूज अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो व्हाई देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अराबिका कॉफी बीन्स इन 2021.
तो सिंपल है, सप्लाई कम हुई है। तो सिंपल एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के थ्रू सप्लाई को कम करके दिखाऊंगा। सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल ड्रॉ बोला है, ड्रॉ। शो बोला है। जब भी आपको पेपर में शो बोलना है ना, आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ पूरे 2 मार्क्स आपकी डायग्राम के हैं। सही है, पूरे 2 मार्क्स जो है वो आपकी डायग्राम के हैं। तो पार्ट ए इज वेरी सिंपल। पार्ट बी, is the price elasticity of supply of coffee beans likely to be elastic or inelastic in any 1 year? Justify or answer from the information provided। 2 मार्क का सवाल। क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी कॉफी बीन्स की? इलास्टिक सप्लाई होगी जिधर वो डिमांड को आराम से मीट कर लेते हैं, या इन इलास्टिक सप्लाई होगी जहां पर वो डिमांड को आसानी से मीट नहीं कर पाते? इलास्टिक सप्लाई का मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा से बढ़ती है। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई कम से बढ़ती है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इन इलास्टिक सप्लाई होगी। तो आप क्या बोलोगे? इनइलास्टिक सप्लाई है ड्रोट एंड फ्रॉस्ट इन ब्राजील और स्टॉर्म्स इन वियतनाम, मीनिंग दैट सप्लाई इज वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल। द नेचर इज एग्रीकल्चरल, मीनिंग दैट यू कैन नॉट सिंपली ग्रो एडिशनल आउटपुट। So it is inelastic supply. सही है, it is inelastic supply. So again, the first four marks are very simple. जी अनुषा बेटा, आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है पहले पार्ट में, क्योंकि उसने कुछ एक्सप्लेन का नहीं बोला है। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करनी कारिस्तानिया। अगर उसने शो बोला है तो आप शो करो, एक्सप्लेन बोला है तो आप साथ में एक्सप्लेन भी करो। 2 मार्क का सवाल, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि 2 मार्क्स से ग्राफ्स के होंगे। पार्ट बी में हमने बता दिया कि सप्लाई इनइलास्टिक है। अच्छा, पार्ट सी में क्या कह रहा है? कंसीडर वेदर अ बफर स्टॉक स्कीम इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द प्राइस फ्लक्चुएशंस एज शोन इन फिगर 1.1। अब आप देखो फिगर 1.1 में कितनी फ्लक्चुएशंस है, कितनी फ्लक्चुएशंस है। प्राइस पहले शूट कर रही है, फिर कम हो रही है। ये देखो यहाँ पर कितनी शूट हुई है। बफर स्टॉक असल काम यहाँ पर आएगा, बफर स्टॉक की असल गेम यहाँ पर है, फिर बफर स्टॉक की गेम यहाँ पर है। इन दी एंड यू विल नीड बफर स्टॉक। वही बात है, कर दो एक लाइन की डेफिनेशन है, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपको बफर स्टॉक स्कीम कैसे काम आएगा? एट द टाइम ऑफ सरप्लस, जब प्राइस कम होने का खतरा होगा, यू विल बाय दिस स्टॉक टू स्टॉप दिस, टू स्टॉप दिस, बाय दिस स्टॉक। ठीक है, और अगर फ्यूचर में शॉर्टेज होती है तो शॉर्टेज की वजह से बढ़ती है ना प्राइस, तो टू स्टॉप दिस मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इस प्राइस को बढ़ने से रोकना है तो मैं क्या करूंगा? हाउ कैन यू स्टॉप दिस प्राइस इंक्रीज? रिलीज द स्टॉक। ठीक है, सही। तो बफर स्टॉक में क्या होता है? मार्केट में सरप्लस होगा तो प्राइस कम होती है ना, तो प्राइस को गिरने से बचाने के लिए बाय दिस स्टॉक। शॉर्टेज में प्राइस बढ़ती है तो प्राइस को बढ़ने से बचाने के लिए रिलीज द स्टॉक। सो यू बाय एंड सेल द स्टॉक अकॉर्डिंगली टू मेंटेन द प्राइसेस ऑफ द कॉफी बीन। ठीक है, तो पार्ट सी में यही कह रहा है, कंसिडर करो कि क्या ये बफर स्टॉक स्कीम सक्सेसफुल होगी इन रिड्यूसिंग द प्राइस फ्लक्चुएशंस जो वेदर की वजह से हो रही है। तो पार्ट सी में बड़ा सिंपल आपने उसको बताना है कि बफर स्टॉक स्कीम होती है। बफर स्टॉक स्कीम अकर व्हेन गवर्नमेंट्स बाय एंड सेल कॉफी बीन्स टू स्टेबलाइज प्राइसेस। Government will supply surplus stocks of coffee beans in the event of poor yield to minimize excessive price rises and buy excess supplies of coffee beans when yields are sufficiently high enough to cause significant price reductions. However, if coffee beans cannot be stored in a way that maintains its quality, it may not be sold at the intended market price। क्योंकि क्वेश्चन कंसिडर है तो टू साइडेड जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कंसिडर है तो टू साइडेड जाना पड़ेगा विद एन इवैल्यूएशन। सही है, एक माह की वैल्यूएशन की यहाँ पे है, तो आप उसको बोलो कि देखो वैसे तो बाइंग एंड सेलिंग करके हवाई बातें तो आप बहुत कर सकते हो, पर कॉफी बीन अगर स्टोर करना मुश्किल है और अगर स्टोर करने के बाद उसकी क्वालिटी इतनी मेंटेन नहीं रहेगी तो आप उसको एग्जैक्ट उस प्राइस पे सेल या बाय नहीं कर पाओगे। तो यू माइट नॉट बी एबल टू स्टॉप द प्राइस फ्लक्चुएशंस। और एंड में आप उसको यही बोलोगे कि क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं? ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट्स बजट, दैट इज द एबिलिटी टू फाइनेंस दिस स्कीम। क्या ये स्कीम फाइनेंस कर सकती है? पैसा इनके पास है कि नहीं है? तो पार्ट सी भी अगेन एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो हमने 12 मार्क का सवाल किया था, जब हमने बफर स्टॉक पढ़ा था और टॉपिकल में भी मैंने आपको कराया था, तो उसमें भी हमने यही सारी बातें लिखी थी वैल्यूएशन। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि उसके पास पैसा है भी या नहीं है। तो शुरू के 3 पार्ट तो देखो बहुत सिंपल है। 4 मार्क में 1 मार्क की वैल्यूएशन है जो हम बता चुके हैं। आखिरी के 2 पार्ट 6 मार्क के होते हैं जिसमें 2 मार्क की वैल्यूएशन होती है। टू साइडेड आंसर होगा। Assess the extent to which coffee bean producers will gain from the huge increase in the coffee bean prices in 2021।
पार्ट सी में कह रहा है कि बताओ किस हद तक प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा जब कॉफी बीन की प्राइसेस बढ़ी थी 2021 में। तो फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। उन प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उन प्रोड्यूसर्स का फायदा होगा जो इस वेदर वाले इवेंट्स को सस्टेन कर सकते हैं। सही है। पर वो प्रोड्यूसर्स मारे जाएंगे जो सस्टेन नहीं कर पाए। सही है। तो किस तरह आंसर लिखोगे? पूरा देखो आंसर लिखा हुआ है। द कॉफी बीन सप्लायर्स मे बेनिफिट फ्रॉम द शार्प rise in prices if demand for coffee is inelastic. In this case, even though the prices rise, the quantity demanded falls only slightly, so producers receive higher revenue. This additional income could allow producers to invest in better storage methods or protect crops against future climate risks. Producers in major countries like Brazil and Vietnam with existing coffee stockpiles could also benefit more as they are able to sell at more higher prices, while their competitors affected by frost and poor weather. जो लोग पहले से माल होल्ड करके बैठे हैं उनको बहुत फायदा होगा। जो लोग पहले से अपने पास स्टॉक रखे बैठे हैं उनको बहुत फायदा होगा। क्लियर है चीज? पर नुकसान वही है, नॉट ऑल सप्लायर्स विल बेनिफिट। अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाएगा। सम सप्लायर्स may also be unable to increase supply quickly due to weather issues, क्योंकि सप्लाई तो इनइलास्टिक है। अगर एकदम से डिमांड बढ़ भी जाती है तो आप सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? ये भी एक मसला है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सीडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कॉफी अगर महंगी हो रही है तो पीपल माइट स्विच टू टी। अगर वो टी पे स्विच हो गए तो फिर अगेन कॉफी वाले प्रोड्यूसर्स मारे जाएंगे। सही है। अच्छा यहाँ पर ना देखो थोड़ी वर्डिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड को ना कॉन्ट्रैक्ट्स बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देखो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। परसेंटेज का वर्ड यूज करा करो क्वांटिटी के साथ। ठीक है। पीईडी और पीईएस दोनों डिस्कस कर लो, वही बात है। इन दी एंड कंक्लूजन में भी आप यही बोलोगे कि ओवरऑल इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है। इवैल्यूएशन भी आपकी यही है कि ओवरऑल किसको कितना फायदा होगा किसको नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज के ऊपर। ठीक है। ये डेटा रिस्पॉन्स एक बड़ी अजीब सी है क्योंकि इसने स्पेसिफिकली कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं करे यहाँ पे। ठीक है। साथ के लिख सकते हो, मसला नहीं है, ये भी लिख सकते हो। बोलो रेवेन्यू बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है ये तो हमें नहीं पता। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप पीडी का डिसएडवांटेज बता रहे हो। ठीक है। तो पार्ट डी क्लियर है। बड़ा आसान था ये, इतना कोई मसला नहीं है इसमें। सही है। प्रॉपर इलास्टिसिटी से बात हो रही है पूरी। तो लास्ट पार्ट अगर आप देखो इसका, बड़ी बेकार डेटा रिस्पॉन्स थी है। Assess the likely impact of fluctuations in coffee bean prices on the economies of major producers such as Brazil and Vietnam. Again, very similar to part D. प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर बात करनी है। इकोनॉमीज ऑफ मेजर प्रोड्यूसर सच एज ब्राजील एंड वियतनाम। अब प्राइस फ्लक्चुएशंस के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो डी से बड़ा सिमिलर है ये। किस हद तक बेनिफिट होगा, अगेन वही बात है। क्या इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमीज के ऊपर, तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इन सारी चीजों पे बात करनी पड़ेगी। देखो पार्टी में क्या लिखा हुआ है। फ्लक्चुएटिंग कॉफी बीन प्राइसेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमीज ऑफ मेजर प्रोड्यूसर्स लाइक ब्राजील एंड वियतनाम। One benefit is that when coffee price rise, the producers earn more revenue and governments can collect higher tax revenue. So you connect it with the tax revenues. These funds can be used to finance other development projects such as building roads, schools, or improving the health services. This improves the long-term productivity and reduce over-reliance on coffee production. So diversification शुरू हो जाएगी. It can also support economic growth both in the short and long run by building a more diverse and stable economy. नुकसान क्या है? एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, ये भी लिख सकते हो। However, price fluctuations can also bring risk. The unpredictability of prices can reduce business confidence. Producers may choose to save their profits rather than reinvest, especially if they fear prices will fall again. As a result, there may be less investment and slower growth in the longer term. When prices fall too low, it could lead to business closures and job losses in the coffee sector, causing higher unemployment in the wider economy. Incomes पे impact बताओ। फिर बोलो prices इतनी बढ़ रही है तो export भी कम हो सकते हैं। तो overall end में आप उसको यही बोलोगे कि देखो ये price fluctuation से countries पे बहुत impact आ रहा है। तो उनको प्लान अहेड करना चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर बेनिफिशियल भी है ना तो ये सस्टेनेबल बेनिफिशियल इम्पैक्ट नहीं है। प्राइस फ्लक्चुएशन से कुछ प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा है, सबको नहीं हो रहा। तो इन दी एंड आप उसको बोलो इनकी कॉफी पे रिलायंस बहुत ज्यादा है, दे नीड टू डाइवर्सिफाई।
और दूसरे सेक्टर्स पे पैसा लगाओ और इतना ज्यादा उस चीज पर रिलाय ना करो जो वेदर की वजह से इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो क्लाइमेट चेंज है उसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और इट इज अ फैक्ट कि जब आप प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हो तो आप हमेशा अंडर डेवलप्ड ही रहते हो। सो यू नीड टू डाइवर्सिफाई और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक तरह से आप उसको मशवरा दे रहे हो कि ये जो इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव हमने बताया भी है तो वो सस्टेनेबल पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस के फ्लक्चुएशन एंटिसिपेटेड भी हैं फिर भी मसला है यहाँ पे। देखो ये इन्फ्लेशन नहीं है जो एंटिसिपेशन अनएंटिसिपेशन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, माइक्रो लेवल पे आप यहाँ पर बात कर रहे हो। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बी डिपेंडेंट ऑन वन प्राइमरी प्रोडक्ट। 35% आप वर्ल्ड सप्लाई रख के बैठे हो एक चीज की, चलो ठीक है, वही सऊदीया वाला हिसाब है, ऑयल पे डिपेंडेंट है वो, तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आपको, टूरिज्म की तरफ जाओ या दूसरी तरफ जाओ, ऐसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहो जो वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वेदर आपको कभी भी धोखा दे देगा। सही है, खान लिख सकते हो अगेन, पर वही माइक्रो लेवल पे बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी लेवल पे बात नहीं हो रही, हर बंदा तो कॉफी नहीं पीता ना। ठीक है, तो ये आपकी डेटा रिस्पॉन्स थी इस पेपर की, अगेन नॉट अ वेरी नॉर्मल डेटा रिस्पॉन्स, मैंने सोचा मैं करा दूं आपको। जीडीपी बढ़ जाएगा बट अगेन यू आर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग। सही है, तो इन द एंड आपको डाइवर्सिफिकेशन की बात तो करनी पड़ेगी। देखो एंड में हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे बात करी है, मैंने बोला शॉर्ट रन में आपको बेनिफिट्स हो भी जाएंगे ना तो लॉन्ग रन में आप फंस जाओगे। क्लियर है चीज? ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन बी which is the micro section of October November 2024 paper 2 variant 3। तो यहाँ पर देखो आपके पास दो सवाल है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन क्वेश्चन, या तो आप 2 करोगे या तो आप 3 करोगे। तो 2 एक नॉर्मल सवाल है जो कि काफी रिपीट होता है पार्ट ए, पर पार्ट बी थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। अली बेटा ये बातें मैसेज से पूछा करो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी अगर आप देखो तो पार्ट ए और बी एक ऐसा सवाल है जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, 23 में भी एंड 24 में भी। ठीक है, आयल बेटा शायद आप दुनिया से लॉस चल रहे हैं, दूसरा पेपर शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन 2 एंड 3 में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फालतू बातों से गुरेज करें, खाली पढ़ लें तो बेहतर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन बी का जो पार्ट ए है उसमें अगर आप देखो तो पहले कह रहा है विद द एड ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ free goods and public goods and consider whether free of charge vaccinations offered by a government should be classified as a free good। तो पहले तो एक एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई डिफरेंस बतवा दो बिटवीन फ्री एंड पब्लिक गुड्स। तो आप सिंपली फ्री गुड को बताओ कि फ्री गुड क्या होता है, दीज गुड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। पर आप खाली फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर में नहीं लिख सकते, आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि ये वो गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस, ये अबंडेंट इन सप्लाई होते हैं, नो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू एंजॉय दीज गुड्स। ठीक है, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? बिकॉज यू यू डोंट नीड रिसोर्सेज टू यूज दीज गुड्स। मतलब अगर मैं सी वाटर या सनलाइट या एयर यूज करता हूं तो मुझे कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्री गुड का, कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दुनिया में सिर्फ एक गुड है जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, विच इज फ्री गुड। पर व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक गुड्स, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं कि टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये नॉन राइवल होते हैं, एक ही कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट तो बहुत तरीके से फीचर्स के साथ डिफाइन करना है। सही है, फिर आपको बताना है कि एक्सप्लेन हाउ इट इज नॉट अ फ्री गुड बट अ प्राइवेट गुड, क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन इज अ मेरिट गुड। वैक्सीनेशन इज नाइदर अ पब्लिक गुड नॉर अ फ्री गुड, इट इज अ मेरिट गुड। एंड मेरिट गुड कौन सी कैटेगरी में गिरता है? प्राइवेट गुड की कैटेगरी। तो आप अपने एनालिसिस में उसको ये बताओगे कि फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन फ्री गुड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन है तो फ्री, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये फ्री गुड है। यहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो हो रहा है ना। अगर एक गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कोविड की हमें दे रही थी तो उसको तो रिसोर्स लग रही थी ना भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो थी ना, क्योंकि जो रिसोर्सेज वो वैक्सीनेशन पे लगा रही थी वो वही रिसोर्सेज कहीं और भी लगा सकती थी, वो एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगा सकती थी, दूसरे काइंड ऑफ हेल्थ केयर पे। इसका कहने का मकसद ये है कि बेसिकली
नॉट एवरीथिंग विच इज फ्री इज अ फ्री गुड, ये आपको दिमाग में रखना है। नॉट एवरीथिंग फ्री इज अ फ्री गुड, नॉट एवरीथिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट इज अ पब्लिक गुड। ये बेसिक चीजें आपको मार्केट फेलियर पढ़ाते हुए बताई गई थी कि हर वो चीज जो गवर्नमेंट दे रही है वो पब्लिक गुड नहीं है, हर वो चीज जो फ्री है वो फ्री गुड नहीं है। वैक्सीनेशन इज अ मेरिट गुड, वैक्सीनेशन इज अ प्राइवेट गुड। तो आपने जब उसको एनालिसिस में ये चीज समझा दी ना कि हाउ इज वैक्सीनेशन नॉट अ फ्री गुड, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर आपको ये बताना है कि वैक्सीनेशन फिर है क्या। तो वैक्सीनेशन इज अ प्राइवेट गुड। आप बोलो वैक्सीनेशन इज एक्सक्लूडेबल, वैक्सीनेशन इज राइवल। तो इसके पैराग्राफ्स देखो आपको मैंने दिए हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। तो इसको रीड करिएगा। अब आपको साथ में ना यहाँ पर ये भी बताना है कि हाउ इट इज अ प्राइवेट गुड, मतलब हाउ वैक्सीनेशन इज अ प्राइवेट गुड, आपको ये एक्सप्लेन करना है हाउ वैक्सीनेशन इज अ प्राइवेट गुड, क्योंकि ये राइवल है, कोई लिमिटेड क्वांटिटीज है और ये एक्सक्लूडेबल है। सही है। हर वो चीज जो फ्री होती है वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, याद है एजुकेशन में आपको बताया था। तो वैक्सीनेशन में भी यही बोलो, बोलो भाई सर्टेन कंडीशंस होंगी, सही है, सर्टेन एज होगी जिनके लिए फ्री होगी, इस तरीके से आपको चीजें बतानी है यहाँ पे। ठीक है। इवैल्यूएशन में फिर आपने यही कहना है, इवन दो द वैक्सीन इज फ्री फॉर द कंज्यूमर, इट इज नॉट अ फ्री गुड, द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी एंड यूजर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द वैक्सीन, व्हिच मींस दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, that money could have been used for other things like schools or roads. So vaccines should not be called free goods, they are merit goods that the government provides for free because they are very important for the society. और यहाँ पर आप फर्दर ऐड कर सकते हो कि इट इज अ प्राइवेट गुड, इट इज अ प्राइवेट गुड। तो इसका जो मॉडल आंसर होगा उसमें सारी चीजें कंस्ट्रक्टेड होंगी, तो काइंडली इसको रीड कीजिएगा अगर आपको वक्त मिले तो। और अगर इसका हम पार्ट बी देखें, आप बड़ा आसान सवाल था ये। अगर यहाँ पर आप नॉलेज में मार्क्स यूज कर रहे हैं तो बेटा इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपको फ्री गुड और पब्लिक गुड की डेफिनेशन ही नहीं आती है। 8 मार्क के क्वेश्चन में इफ यू आर लूजिंग द फर्स्ट 3 मार्क्स, इसका मतलब आपको सिलेबस तक नहीं आता है। अच्छा, पार्ट बी में ये कह रहा है assess whether the expected benefits of healthcare services free of charge at the point of use exceed the likely cost। कह रहा है जब हेल्थ केयर को फ्री दिया जाता है लोगों को तो इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दो और ओवरऑल बताओ बेनिफिशियल है या नहीं। क्वेश्चन को ट्रांसलेट क्या करो, फ्री हेल्थ केयर के प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहा है विद एन इवैल्यूएशन, तो आप उसको बोलो हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड। सही है, जो ऊपर हम बता भी चुके हैं। फिर उसके बाद तुम्हें बेनिफिट्स बताने हैं। भाई जब लोगों को हेल्थ केयर फ्री मिलेगा तो फ्री हेल्थ केयर की वजह से जो है वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगी। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ आप उसको बेनिफिट में ये बताओ कि इससे इकोनॉमी में स्प्रेड ऑफ डिजीज कम होगा, एक हेल्थी सोसाइटी होगी विच क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स। फर्दर एनालाइज करो। फिर आप बोलो कि जब लोग हेल्दी होंगे तो वो छुट्टियां नहीं करेंगे, इकोनॉमी का एब्सेंटीज्म रेट होगा, कम होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, सप्लायर्स की कॉस्ट कम होगी बिकॉज द वर्कर्स आर हेल्दी। तो एक हेल्दी सोसाइटी बहुत जरूरी होती है। तो 3 बेनिफिट्स आपने बता दिए। नुकसान में क्या बताओगे, बोलो भाई आप फ्री दे रहे हो, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फ्री का मतलब है कि लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाएंगे, एक नाखून भी टूटेगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या पता कि भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आ जाए लोगों को और आप इतना मीट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट एक स्टूडेंट ने दिया कि जब फ्री हेल्थ केयर होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, जाहिर है क्योंकि लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स बिल्ड करेगी, बिल्कुल कह सकते हैं। फिर एक और नुकसान आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू इम्प्रूव। उनका कोई कंपटीशन थोड़ी है, उनका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि उनको पैसा कमाना है, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट्स आर नॉर्मली इनएफिशिएंट, तो प्राइवेट हेल्थ केयर ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि आप सब्सिडाइज कर दो उन सप्लायर्स को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर देन पूरी जिम्मेदारी खुद ले लो। ठीक है। इवैल्यूएशन में आपको ओवरऑल उसको यही कहना है कि देखो इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, फ्री हेल्थ केयर देने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि आप मिक्स्ड अप्रोच रखो, प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडाइज करो ताकि वो भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करे, खुद भी प्रोवाइड करो। तो देयर शुड बी अ मिक्सचर, क्योंकि अगर आप सारा खुद प्रोवाइड करोगे देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गवर्नमेंट फेलियर। सही है, गवर्नमेंट्स आर नॉट एफिशिएंट। तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इसको मैनेज कर रही है। सही है। तो आपको सारी ये सारी उसको बातें बतानी है। एल बेटा आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, पूरे पैराग्राफ दिए हैं। सही है।
तो आपको यहाँ पर ना ये चीज जरूर पोर्ट्रे करनी है कि देखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आप उनको ऐसे ही बांट नहीं सकते, आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि फ्री हेल्थ केयर में जिनको नहीं भी जरूरत होगी ना, वो भी शायद इसका फायदा उठाना शुरू कर दें। तो ये वही बोला ना, हर छोटी चीज के लिए फिर वो हॉस्पिटल का यूज करना शुरू कर देंगे। तो देयर शुड बी अ मिक्स्ड अप्रोच, जहां पर आप फ्री भी प्रोवाइड करो सर्टेन कंडीशंस के साथ, और साथ में सब्सिडाइज भी करो उन सप्लायर्स को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपकी एक बेटर इकोनॉमी में अप्रोच होगी। देखो एंड में मैंने यही बोला, केयरफुली डिजाइन मिक्स्ड अप्रोच में ऑफर द बेस्ट आउटकम। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी चीजों पे ध्यान देना होता है। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि भाई रिसोर्सेज को डिवाइड करे, थोड़ी फ्री एजुकेशन दे, थोड़ा फ्री हेल्थ केयर दे। सारा फ्री हेल्थ केयर दे देगी तो फिर एजुकेशन में पैसे ही लगाएगी। फ्री राइडर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ सकता, वो फिर दूसरे गुड्स होते हैं बेटा। अगेन हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड, हेल्थ केयर इज अ प्राइवेट गुड। ये गुड्स को कंफ्यूज नहीं करना कभी भी। अगर आप यहाँ पर फ्री राइडर प्रॉब्लम लिख दोगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, अनशन लिख रहा है। ठीक है, तो शुरू की 2-3 लाइनों में आपको जज कर लेते हैं कि ये बच्चा कैसा है। तो आपका पहला इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होगा, फिर पूरा पेपर नेगेटिवली चेक होगा। ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन अटेम्प्टेड इन दिस पेपर। पर अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखें ना, वो भी एक बहुत बार रिपीट अप हो चुका है। अब जैसे क्वेश्चन 3 का जो पार्ट ए है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, इसमें इतना कोई मसला है नहीं। एक्सप्लेन 2 इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बहुत सारी रीजंस हमने बहुत बार पढ़ी हैं। मार्च 23 का भी क्वेश्चन था, टॉपिकल में भी मैंने इसका सवाल कराया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में भी उसका मैंने सवाल कराया था। एंड कंसिडर व्हाई इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। क्यों इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को सही से मेजर नहीं किया जा रहा? तो सबसे बड़ा मसला है, लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, लोग अपनी वेल्थ छुपाते हैं, लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बाहर मुल्कों में जो टैक्स हेवन्स हैं। व्हाट आर टैक्स हेवन्स? आपको टैक्स हेवन्स को वर्ड पता होना चाहिए एज स्टूडेंट। टैक्स हेवन्स वो मुल्क होते हैं जहां पर टैक्सेस नहीं है। जैसे दुबई इज अ टैक्स हेवन, वहां पर इनकम टैक्स नहीं है। सही है। तो डिफाइन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कि भाई अमीर और गरीब के गैप को इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कहते हैं। इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं कि एक बंदा एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स। आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये इसकी वजह से भी अलग अलग इनकम होती है। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी अलग अलग इनकम होती है। क्या आपको ट्रांसफर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कितनी होगी? इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग ट्रांसफर पेमेंट्स, वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, वो फूड वाउचर्स दे रही है, वो पेंशन दे रही है, तो इससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होती है। टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके मुल्क में रिग्रेसिव टैक्सेशन ज्यादा है, अगर आपके मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा होगी। और अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम टैक्स ज्यादा है, इनकम टैक्स कौन से नेचर का टैक्स होता है? जो अमीरों से ज्यादा लेता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होती है, क्योंकि अमीरों से ज्यादा लिया जाता है, गरीबों से कम लिया जाता है। तो इनकम टैक्स का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है, जिससे इनइक्वालिटी कम होती है। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो रिग्रेसिव है। तो टैक्सेशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि मुल्क की इनइक्वालिटी कितनी होगी। तो कोई भी 2 इकोनॉमिक रीजंस आपको डिटेल में समझाना और फिर आपको इश्यूज बताने। व्हाट आर द इश्यूज? पहला इश्यूज यहाँ पर ये है कि भाई पहली चीज, लोगों की वेल्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों की वेल्थ में प्रॉपर्टीज हैं, लोगों की वेल्थ में सेविंग्स हैं, शेयर्स हैं, बिजनेस ओनरशिप है, पेंशन हैं। अब आप किस किस चीज को यहाँ पर देखोगे? हर चीज की अलग वैल्यू होती है। सबसे बड़ा मसला होता है हिडन और अंडर रिपोर्टेड। ये बहुत बड़ा इशू है, लोग अपना पैसा ही छुपाते हैं, तो आप कैसे देखोगे? फिर एसेट की सेलिंग प्राइसेस विद टाइम चेंज होती हैं भाई। आप मिसाल के तौर पे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो और एक कंट्री में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप बहुत अमीर हो, पर एकदम से प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आ गया। अब उस सिनेरियो में तो फिर आप ये बोलोगे कि नहीं यार, मेरा तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इकोनॉमी में कम हो रही है। तो आप ये भी तो देखोगे इकोनॉमी में प्रॉपर्टी डाउनफॉल आया, अब कल को प्रॉपर्टी की वैल्यूज वापस बढ़ जाएंगी तो इनइक्वालिटी वापस बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे अगेन। फिर लोग इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी करवा रहे हैं, तो हिडन भी होता है ये सारी चीजें। इनहेरिट जब आप किसी की प्रॉपर्टी करते हो तो ऑफिशियली रिकॉर्ड भी नहीं होता कभी कभार। सही है, उन्हीं के नाम पे चीजें होती हैं और आपको मिल जाती हैं। ये भी एक मसला है। सही है। हर मुल्क का अपना तरीका होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करने का। देयर आर मेनी मेथड्स। जैसे एक मेथड मैंने आपको सिखाया था जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, जीनी कोफिशिएंट का लोरेंस कर्व। देखो जीनी कोफिशिएंट तो आपके सिलेबस में है, पर लोरेंस कर्व नहीं है। तो लोरेंस कर्व इज अ मेथड जिसके थ्रू आप ये करते हो, पर वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें काफी चीजें हिडन है। मतलब जीनी कोफिशिएंट के अपने भी बहुत नुकसान आते हैं कि आप सिर्फ इस बेसिस पे ये नहीं देख सकते कि जीनी कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी ज्यादा है। सही है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं, सिर्फ इनकम से नहीं देखते चीजों को। कुछ लोगों की इनकम कम होती है पर वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर भी अच्छा होता है। सही है। तो इवैल्यूएशन में ना फिर आप उसको कोई भी 2 इश्यूज आपको आगे यहाँ पर बताने हैं, मसले।
इवैल्यूएशन में आप उसको एंड में यही बोलोगे कि वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करना मुश्किल तो है, पर ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के सिस्टम पे, गवर्नमेंट की डेटा पे, कि वो किस तरीके से इसको मेजर करने की कोशिश कर रही है। इसको मेजर करना आसान तो नहीं है, पर इसको इम्प्रूव जरूर किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट सही से काम करे। अब ये एक ऐसा सवाल था जो शायद बच्चे इसमें 6 मार्क्स तो देखो इजीली उठा ही सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको रीजंस ऑफ इनइक्वालिटी बढ़ा देते और इनइक्वालिटी की डेफिनेशन सही से बता देते तो 3 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एक इनइक्वालिटी का मसला सबको ही पता है कि भाई लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, तो इनइक्वालिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है। 2 मार्क आपको फिर यहाँ भी मिल जाते हैं। और इवैल्यूएशन में जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, गवर्नमेंट पे गाने डाल दिया करो। तो यहाँ पर हमने यही किया, गवर्नमेंट पे गाने डाल दिया। हमने बोला भाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करने में कितने मसले आएंगे, कितने मसले नहीं आएंगे, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। खत्म, पूरी कहानी आप गवर्नमेंट पे फेंक दो। ये सबसे आसान अप्रोच होती है वैल्यूएशन की जब आप फंस रहे हो पेपर में। और इसका जो पार्ट बी है ना, वो हमने अभी रिसेंट पेपर में डिस्कस किया है। देखो मैंने यहाँ पर साथ में लिख भी दिया है। सॉल्व इब्राहिम बेटा कुछ बोला नहीं है उसने, तो क्यों करेंगे। पार्ट बी में इसने पूछा है असेस व्हिच पॉलिसीज आर लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। मई जून 2024 में जो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी था, पेपर 2 वेरिएंट 2, सेम क्वेश्चन था। ये मई जून 2024 के पेपर 2 वेरिएंट 2 का जो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी था, उसमें सेम क्वेश्चन था। मैंने वही पूरा फॉर्मेट छाप दिया है। मैंने 2 पॉलिसीज लिखनी है टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम और एंड में इवैल्यूएट करना है। तो मैं बेसिकली पहली पॉलिसी जा रहा हूँ टैक्सेशन की तरफ और दूसरी पॉलिसी जा रहा हूँ नेशनल मिनिमम वेज की तरफ। टैक्सेशन में मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स को बढ़ाऊंगा, जिसका नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव, अमीर की इनकम से बड़ा हिस्सा लिया जाता है। और रिग्रेसिव टैक्स जो कि गरीब को बर्डन डालता है, उसको कम करूंगा। बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स इज हार्मफुल फॉर द पुअर पीपल व्हाइल इनकम टैक्स इज हार्मफुल फॉर द रिच पीपल। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, प्रोग्रेसिव टैक्स को बढ़ाओगे, इम्पैक्ट ऑन द रिच है, इनसे पैसा जमा करके गरीबों को दोगे इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन, सो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। रिग्रेसिव टैक्स को मैं कम करूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कम करना है, उसका इम्पैक्ट पुअर पे आता है, तो इससे उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी इनकम बचेगी तो वो दूसरी चीजों पर खर्च कर पाएंगे, तो इससे भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है। पर हर पॉलिसी के नुकसान है, तो आपको नुकसान एक लाजमी बताना है कि इनकम टैक्स को बढ़ाऊंगा तो लोग अपनी इनकम छिपाना शुरू कर देंगे, टैक्स एवेजन शुरू कर देंगे, डिसइंसेंटिव होगा, काम करने का दिल नहीं चाहेगा उनका, एमिग्रेशन होगी, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओगे तो बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स हमारी इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स एक बिजनेस की इनकम पे लगता है, विच आर द प्रॉफिट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स को बढ़ाऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को बढ़ाऊंगा, फूड वाउचर्स दूंगा, पेंशन दूंगा, तो इससे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। देयर इज अ चांस कि एक इकोनॉमी में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जब आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देना शुरू कर देते हो ना, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वही आपका हाल हो जाएगा। मुफ्त की रोटी लोगों के मुंह पे लग जाएगी, पॉवर्टी ट्रैप का शिकार हो जाएंगे, गरीबी के जाल में फंस जाएंगे। यही मसला होता है कि जब आप इतनी सारी एनजीओ खोल देते हो और लोगों को फ्री में इफ्तारियां कराते हो और फ्री में खाने देते हो, जो कि अच्छी बात है, पर इन द लॉन्गर टर्म एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। आप जितने पैसे इन राशन पे और इन लोगों को खाने खिलाने में खर्च कर रहे हो, इनको आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो, आप इनको कोई काम सिखा दो, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये मसला जब एक इकोनॉमी में आ जाता है ना, फिर उसको हल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक डिसएडवांटेज आपको बताना है, आपने टैक्सेशन की पॉलिसी पूरी समझा दी और आपने कोई एक डिसएडवांटेज बताना है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिसी। और जो नेक्स्ट पॉलिसी आपकी यहाँ पर है वो कौन सी है, नेशनल मिनिमम वेज। नेशनल मिनिमम वेज एक ऑफिशियल वेज होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके नीचे आप वेज नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल द मार्केट इज करंटली ऑन इक्विलिब्रियम, कि इतनी वेज है और इतनी क्वांटिटी है। देखो लेबर मार्केट का ग्राफ बना हुआ है, मैंने पहले भी बनाया था उस पेपर में, वेजेस एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखा, ये आपकी वेज है, ये आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर है। मिनिमम वेज लगी तो वेज बढ़ गई, इनइक्वालिटी कम हो गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो बिल्कुल सबसे गरीब होते हैं ना, उनका यहाँ पर फायदा होता है, क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो मिनिमम वेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। पर एक बंदा अगर 15,000 रुपए कमा रहा है और मिनिमम वेज 25,000 हो गई, तो उसको फायदा होगा। सही है, पर नुकसान इसका यही है कि सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आप वेजेस बढ़ाओगे, एम्प्लॉयर जो है वो डिमांड फॉर लेबर कम कर देगा। आप वेजेस बढ़ाओगे, मार्केट में और वर्कर्स अवेलेबल हो जाएंगे, दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज सरप्लस ऑफ वर्कर्स। सही है, तो पहला मसला अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा मसला, जब वेज बढ़ती है तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी खतरा बढ़ जाता है। चलो फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन तो ये है कि वेज बढ़ी तो वर्कर को काम से निकाल दिया, पर अगर वर्कर को रखना मजबूरी है तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डायरेक्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में, तो फिर इसको भी अलग टैकल करने के लिए पॉलिसीज लगानी पड़ेगी। तो एक मसले को खत्म करने के लिए दूसरा मसला शुरू हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
एंड में कंक्लूड आप यही करोगे कि यार ओवरऑल कौन सा मेथड बेटर है, ये डिपेंड करता है कि हाउ इफेक्टिवली द गवर्नमेंट इज एबल टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू। अगर आप टैक्सेशन की पॉलिसी यूज कर भी रहे हो तो यू नीड टू हैव अ गुड डिपार्टमेंट ऑफ योर टैक्स जो सही से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज एबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट। खुद तो पैसा नहीं खा रहे, करप्शन तो नहीं हो रही है, ये एक मसला है। देखो गवर्नमेंट पे कहानी डालती। लो इनकम कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो लो इनकम कंट्रीज में बहुत करप्शन है। मनी इज इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। ट्रिकल डाउन अफेक्ट नहीं होता। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का क्या मतलब है कि ऊपर पैसा फंसा हुआ है, नीचे आ ही नहीं रहा है। अमीरों के पास पैसा फंसा हुआ है, नीचे गरीबों तो पहुंच ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है लो इनकम कंट्रीज का खास करके। ठीक है, so in order to conclude, government policies to redistribute on income and wealth can be effective, but their success is not guaranteed. Policy makers must carefully consider the potential challenges and unintended consequences of these policies and strive to implement efficient, targeted and sustainable solutions. By doing so, government can reduce inequality, encourage इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड इंप्रूव द ओवरऑल वेलबींग। अगेन देखो गवर्नमेंट पे कहानी डाल दिया आपने। ठीक है, तो सबसे आसान अप्रोच आपकी इवैल्यूएशन की यही होती है कि आप गवर्नमेंट पे कहानी डाल दो। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So now we are moving on to the section C of October-November paper 2024 paper 2 variant 3 section C macro। अगेन मैक्रो में भी कोई एक सवाल आपको करना है। ये दोनों सवाल बहुत आसान है, ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा आसान है, ये दोनों सवाल रिपीटेड है, कोई भी नया सवाल नहीं है। इन चारों पार्ट में से कोई भी सवाल नहीं है। तो आप 4 भी कर सकते हो, आप 5 भी कर सकते हो, दोनों आसान है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन 4 देखें पहले, तो क्वेश्चन 4 अगर आप देखो सेक्शन सी का पार्ट ए, तो इन 2021 ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन मेनी इकोनॉमीज इंक्रीज टू अ लेवल नॉट एक्सपीरियंस फॉर 50 years। कोविड था। With the help of diagram, explain what is meant by cost push inflation and consider whether this type of inflation has affected your own economy since 2021। तो पाकिस्तान has been affected by cost push inflation। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान की बात कर सकते हो इवैल्यूएशन में। तो पहले तो आप उसको बताओगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, इट अकर्स ओनली इन द शॉर्ट रन, आपको ये पता होना चाहिए। प्राइस लेवल बढ़ती है और ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है क्योंकि इससे रियल जीडीपी कम होता है। सही है, हम वो क्वेश्चंस कर चुके हैं 23 के टॉपिकल में जिसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में से हमेशा कॉस्ट पुश ज्यादा डैमेजिंग है क्योंकि कॉस्ट पुश आपकी इकोनॉमी का रियल जीडीपी कम करता है। आपको यहाँ पर कोई दो एग्जांपल्स देनी है, दो एग्जांपल जिसके थ्रू आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको समझा सकते हो। सो वन यू कैन यूज इज डेप्रिसिएशन which is faced by the Pakistan's economy। पहली बात, क्योंकि हम करेंसी के गिरने की वजह से फंसे हुए। और दूसरा आप लिख सकते हो टीयू पावर, द ट्रेड यूनियन पावर। तो दो रैंडम पॉइंट्स लिखो और फिर एंड में बताओ पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, क्योंकि ऐसे बोला ना योर ओन कंट्री। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में आप उसको बताओ कि इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे अगर आप डिपेंडेंट हो, इन इलास्टिक डिमांड है तो वो इंपोर्ट आपको महंगा पड़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड द सेकंड पॉइंट यू कैन यूज इज नेशनल मिनिमम वेज भी यूज कर सकते हो, ट्रेड यूनियन पावर की वजह से वेजेस बढ़ रही हैं वो भी यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स भी यूज कर सकते हो। So increase in wages and salaries due to trade union power increases the firm's cost of production. Firms will pass these additional costs on its consumers, which increases the price of goods and services. Again, link both the causes with the diagram जो आपने यहाँ पर बनाई है, वरना आपका डायग्राम बनाना यूजलेस है अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो। और क्योंकि सवाल में डायग्राम का इसने बोला हुआ है, नहीं भी बोलता मैं फिर भी बनाता, पर क्योंकि इसने बोला हुआ है तो ये डायग्राम पे 2 मार्क्स आपको देगा लाजमी। सही है, तो अगेन मार्क्स गेन करना इसमें बहुत आसान है। पाकिस्तान हमेशा ये मसला फेस करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो रॉ मटेरियल है नहीं, वो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, और दूसरा उसकी करेंसी का भी बढ़ने का दिख नहीं रहा है फ्यूचर में। तो पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ड्यू टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी एंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। डेप्रिसिएशन मेक एक्सपोर्ट्स चीपर बट सेलिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स एट टू ऑफ इंफीरियर क्वालिटी डज नॉट जनरेट हायर रेवेन्यू। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी बहुत ही कचरा है। Along with it, importing raw material raises its import expenditure, which raises the cost of production, leading to trade deficit, putting further pressure on value of currency to fall further.
till the time it is reliant on other countries for raw material, it is most likely to face cost push inflation. तो आपने अपने मुल्क के बारे में बता दिया जो हमारे मुल्क का हाल है, ये आपकी इवैल्यूएटिव कमेंट होगी। सही है। बड़ा ही सिंपल सवाल था। अच्छा, इसका पार्ट भी उससे भी ज्यादा सिंपल है, इसका पार्ट भी उससे भी ज्यादा सिंपल है। पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है assess whether the potential benefits of an increasing rate of inflation outweigh the potential cost for an economy। तो तीन फायदे दो नुकसान इवैल्यूएशन। अब फायदों में आप इन्फ्लेशन में क्या क्या बताओगे? फायदों में आप उसको बताओगे कि भाई इट स्टिमुलेट्स आउटपुट। अगर अगर एक इकोनॉमी में लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अब इससे इंक्रीजिंग रेट तो लिखा हुआ है, पर इंक्रीजिंग रेट कितना है हमें नहीं पता, तो हम इसको बेनिफिट में यूज करेंगे। हम बोलेंगे भाई लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से है, तो इससे मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, स्टिमुलेशन ऑफ इनकम होगी। अगर बिजनेस की कॉस्ट से ज्यादा इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ रही है तो बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी। बोरोवर्स का फायदा है क्योंकि उनकी प्रीवियस डेट्स की रियल वैल्यू कम हो रही है। अगर दूसरी कंपीटिंग कंट्रीज में आपसे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है तो अगेन आपके एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि आपका मुल्क अभी भी उनको सस्ता लगेगा, पहली बात। अगर आप इन इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपका रेवेन्यू अभी भी बढ़ेगा। तो सिंपल बेनिफिट्स है जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक रियल स्टेट इन्वेस्टर हो तो अगेन आपका फायदा है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। पर नुकसान बहुत है। यू कैन डिस्कस फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है कि जब हाई इन्फ्लेशन की वजह से आप अपनी इनकम बढ़वाते हो, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो फायदा तो इनका हो रहा है, बट दे आर ड्रैग्ड इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। मेरी इनकम अगर 50,000 है और इन्फ्लेशन की वजह से मेरी इनकम 80,000 हो जाती है तो मुझे टैक्स भी तो 80,000 के हिसाब से देना है। इन्फ्लेशन आपको घसीटता है हायर टैक्स ब्रैकेट की तरफ। दिस इज अ गुड पॉइंट। दूसरा, बोलो पुअर पीपल विल सफर, दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज। पर ये ओ लेवल का पॉइंट है, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा लिखना। आप पेपर में लिखोगे मेन्यू कॉस्ट, आप पेपर में लिखोगे शू लेदर कॉस्ट, आप पेपर में लिखोगे फिस्कल ड्रैग, आप पेपर में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, आप पेपर में लिखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे जो इम्पैक्ट आता है। ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने यूज करने हैं। अब यहाँ पर मुझे इंटरनल एक्सटर्नल इफेक्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, यहाँ पर मुझे जनरली उसको इफेक्ट्स बताने हैं। तो आप डिसएडवांटेजेस में इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी यूज कर सकते हो, और इवेल्युएटिव कमेंट्स भी यहाँ पर फिक्स है अगर आपको याद हो। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट यहाँ रिवाइज कराना नहीं है, मेरा पॉइंट सिर्फ फॉर्मेट बताना है। इवैल्यूएशन में आप क्या क्या बोलोगे? पहला पॉइंट, आप दो पॉइंट लिखने हैं इवैल्यूएशन में कोई, तो पहला आप ये लिख सकते हो, इट डिपेंड्स whether the rate of inflation is anticipated or unanticipated। ये पहला पॉइंट है। क्या इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड है? क्या आपको अंदाजा था कि कितनी महंगाई आएगी, या आपको अंदाजा नहीं था? अगर आपको अंदाजा था सो यू कैन कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट इफ यू वर नॉट अवेयर, इफ द इन्फ्लेशन रेट वाज अनएंटिसिपेटेड, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप फंस जाओगे। सही है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर एक मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना, वो आपकी बैंड बजा देगा, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके रियल जीडीपी को हमेशा कम करता है। इट इज ऑलवेज डैमेजिंग, इट कैन नेवर बी बेनिफिशियल फॉर यू। पर अगर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आई है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि एडी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। पर यहाँ पर भी आप यही लिखना कि अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, डिफ्लेशनरी गैप कितना है। एडी के बढ़ने से प्राइस कितनी बढ़ेगी ये डिफ्लेशनरी गैप पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी ये डिफ्लेशनरी गैप पे डिपेंड करता है। तो यू कैन इनकॉर्पोरेट डिफ्लेशनरी गैप एट दिस पॉइंट। और आखिरी पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंपीटिंग कंट्रीज। अगर आपकी कंपीटिंग कंट्री का इन्फ्लेशन रेट आपसे ज्यादा है तो आप पे कभी भी नुकसान नहीं आएगा। ठीक है। कोई डायग्राम नहीं बनेगी इस आंसर में, विदाउट डायग्राम आप ये आंसर करोगे, प्रोज एंड कॉन्स बताओगे। अगर आपको एडी बढ़ाने वाला डायग्राम बनाना है, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप फिर उसको यूज कर सकते हो अपनी इवैल्यूएशन में। पर अगर आपको थियोरेटिकली बताना है, आप थियोरेटिकली बता दो, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन वाला भी क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने डायग्राम नहीं बनाई थी। तो यहाँ भी डायग्राम बनाने की जरूरत ऐसे है नहीं, पर अगर आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डायग्राम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको। ठीक है। अफान ये उसी में आ गया बेटा, रेट में। डिमांड पुल जब तुम बताओगे तो उसमें तुम बता दोगे ना माइल्ड रनिंग हाई, पर वही बात है, माइल्ड बेनिफिशियल होती है, तो डिफ्लेशनरी गैप के साथ ही कवर होगा। फिर ये चीज
तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर इससे भी ज्यादा आसान सवाल ना पार्ट भी है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे भी आसान सवाल क्वेश्चन 5 है। अगर आप क्वेश्चन 5 देखो ना, तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। सही है? वो डिपेंड करता है लाभ है कि हाउ डू यू यूज योर डायग्राम इन योर आंसर। देखो वहां जिधर वो डायग्राम मांग रहे हैं वहां तो 2 मार्क्स लाजमी देगा, पर जिधर नहीं मांग रहे हो और आप बना रहे हो तो आप उस डायग्राम को यूज कैसे करते हो अपने एनालिसिस में, तब मार्क्स देगा। और यूज तो आप करोगे, जाहिर है यूज करके ही आपके एनालिसिस बनते हैं। एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ protection in the international trade and consider which of these is likely to have the bigger impact on employment and output, which is the GDP in the economy which imposes them. So basically this question is about protectionism. जब आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट टैरिफ्स, थ्रू कोटा, थ्रू सब्सिडीज, थ्रू डीवैल्यूएशन, बहुत तरीके हैं। 2 मेथड्स बताने, मैं इंपोर्ट टैरिफ और कोटा बता रहा हूँ। इंपोर्ट टैरिफ बता रहे हो तो इंपोर्ट टैरिफ का डायग्राम लाजमी बनाओ, आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप जैसे ही टैरिफ लगाते हो तो इससे आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। अगेन यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस डायग्राम एट दिस पॉइंट, ठीक है? नहीं है तो आप काइंडली रिवाइज कीजिएगा। फिर आपको बताना है कि टैरिफ का एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो पहली बात, आप बोलो ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे, पर मैं यहाँ पर इस तरह नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा इंपोर्ट टैरिफ जब इंपोर्ट प्राइस बढ़ाता है ना, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होता है एंड पीपल स्विच टू डोमेस्टिक कंजम्पशन, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, which leads to higher output. However, if demand for imports is price inelastic, then the reduction in imports may be less. वही बात है, अगर इनइलास्टिक डिमांड है इंपोर्ट्स की तो इतना ज्यादा कोई इंपोर्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा और डोमेस्टिक आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं पड़ेगा। पर हाँ, यहाँ पर एक फायदा है कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा विच कैन बी यूज्ड ऑन अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी विच कैन इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। पर ये पॉइंट आपको इवैल्यूएशन के लिए बचा के रखना चाहिए कि इवन दो द डिमांड इज इनइलास्टिक, तो टैक्स रेवेन्यू तो मिल रहा है ना, इवैल्यूएशन में बताना ये चीज। फिर आप उसको बोलो कि यार अगर आपने टैरिफ किसी रॉ मटेरियल पे लगा दिया, ये भी एक मसला है, क्योंकि रॉ मटेरियल पे लगा दिया तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से तो हमेशा रियल जीडीपी कम होता है। तो एक तरफ आपने आउटपुट बढ़ा के दिखाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के दिखाई, दूसरी तरफ आपने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट गिरा के दिखाया, ठीक है? फिर आप कोटा के बारे में बताओ, फिर क्या होता था कोटा? कोटा इज द फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। आप फिजिकली इम्पोर्ट्स को लिमिट कर देते हो। तो quotas on the other hand plays a strict limit on the amount of imports allowed. This can have a clearer and more immediate impact as consumers are forced to switch to local alternatives. This may lead to a stronger increase in domestic output and employment, especially if local producers quickly respond to the gap in the market. Now there are two types of evaluation जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। पहली टाइप ऑफ evaluation आपकी ये हो सकती है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि कोटा इज बेटर देन टैरिफ, क्योंकि टैरिफ के साथ बहुत कंडीशंस जुड़ी हुई हैं कि इलास्टिसिटी क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। कोटा के साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हुई, सिंपली तुमने फिजिकली लिमिट कर दिया, बात खत्म। दूसरा एंगल आपकी इवैल्यूएशन का ये हो सकता है कि यार इवन दो कोटा इज गुड, पर कोटा डज नॉट जनरेट यू एनी रेवेन्यू। टैरिफ आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, व्हिच कैन बी यूज्ड इन द इकोनॉमी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एजुकेशन। ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो आप आइदर कोटा को सपोर्ट करो, आइदर टैरिफ को सपोर्ट करो। मैंने दोनों इवैल्यूएटिव कमेंट्स आपको दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे आप लिख देना। मैरिजेस, ठीक है। और इसका अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो जब हम मैक्रो टॉपिकल 2 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 19 क्वेश्चंस कराए थे मैक्रो के, तो उसमें से ये एक सवाल है। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज सेम एज जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 2। assess whether protectionism is always the best way of reducing a deficit on the current account of the balance of payment. The best way, you have to consider an alternative policy. You should always be going for supply side as your alternative policy. पर क्योंकि मैंने उसी सवाल का फॉर्मेट कॉपी किया, तो वहां पर मैंने फिस्कल से कराया था, आपको याद होगा मैंने बताया था, ताकि मैं आपको वैरायटी दे सकूं। तो यू कैन गो फॉर फिस्कल और मॉनेटरी, क्योंकि देखो डिवाइडेड है ना, एक्सपेंडिचर स्विचिंग है, प्रोटेक्शनिज्म इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, और सप्लाई साइड एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते थे, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी को देखा जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। इसको याद करने का टोटका मैंने आपको क्या बताया था कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट रेवेन्यूज। यू वांट टू करेक्ट इट, सो आपको आउटफ्लोज कम करने पड़ेंगे, इनफ्लोज बढ़ाने पड़ेंगे। आपको इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। पर प्रोटेक्शनिज्म का काम होता है इंपोर्ट्स को कम करना। तो आप प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक टैरिफ, एम्बार्गोज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड कोटा। तो वापस मैं टैरिफ की तरफ जा रहा हूँ।
इम्पोर्ट टैरिफ पूरा समझाऊंगा उसको, फायदे नुकसान समझाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, सही है। तो फायदे नुकसान बता के डायग्राम बता दी। नुकसान में आप रिटेलिएशन भी लिख सकते हो, ट्रेड रिलेशंस वर्सन लिख सकते हो, कंज्यूमर की चॉइसेस आप कम कर रहे हो, आप लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच कर रहे हो तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन आ जाएगी, आप बार बार अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनएफिशिएंट हो जाएंगे, मोनोपोली पावर क्रिएट करेंगे जो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री के साथ हुआ है, सही है। यू कैन आइदर गो फॉर सब्सिडी एज वेल, एक टूल पे जाना है और उसकी बुराई बतानी है। तो एक टूल आपका एक्सपोर्ट सब्सिडी भी हो सकता है, जहां पर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करके एक्सपोर्ट को सस्ता करके कंपेटिटिवनेस बढ़ाते हो, इससे भी डेफिसिट कम होता है। बट अगेन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रोड्यूसर्स अगेन डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसका भी ग्राफ है। तो कोई भी एक टूल उठा के उसकी बुराई बता देना। और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में वैसे तो आपको सप्लाई साइड पे जाना चाहिए, बट यू कैन आल्सो गो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी। तो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल समझाया है कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को कम कर देगा। जब एग्रीगेट डिमांड को कम करेगा तो लोगों की इनकम्स कम होंगी, तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ेगा। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को गिराती हैं, विच लीड्स टू लोअर इनकम्स। इससे आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। पर इसका डाउन साइड यही है कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और जनरली फिस्कल पॉलिसी की बुराइयां आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि भाई आप टैक्स बढ़ाओगे तो वर्कर्स विल डिमांड फॉर हायर वेजेस, आप टैक्स बढ़ाओगे तो वर्कर की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो हो सकता है वो अपनी सेविंग को रन डाउन करके अपनी स्पेंडिंग कंटिन्यू रखें, हो सकता है आपके मुल्क में पॉवर्टी बढ़ जाए, हो सकता है टैक्स एवेजन शुरू हो जाए। एंड में इवैल्यूएटिव कमेंट ये होगा कि एक पॉलिसी इंपोर्ट के रास्ते को बंद कर रही है विच इज प्रोटेक्शनिज्म, जिसको हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग भी कहते हैं, और एक पॉलिसी दोनों रास्ते बंद कर रही है, इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक के, विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, विच इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। नाउ विच पॉलिसी इज बेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। अगर एक मुल्क में इन्फ्लेशन है और करंट अकाउंट डेफिसिट है तो यू गो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, यू गो फॉर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जब कम होगा तो भाई जाहिर सी बात है डेफिसिट तो कम हो जाएगा, पर एडी के कम होने से महंगाई भी तो कंट्रोल होगी। अब यहाँ पर आप स्विचिंग पॉलिसी थोड़ी लगा सकते हो, स्विचिंग में तो महंगाई और बढ़ती है। अगर एक इकोनॉमी में रिसेशन है और डेफिसिट है तो देन यू गो फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लाइक टैरिफ आपके डेफिसिट को तो कम कर देंगी, पर जब वो लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच करेंगी तो डोमेस्टिक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा जो आपको रिसेशन से बाहर निकाल देगा। सो ओवरऑल विच पॉलिसी इज बेस्ट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। कि डेफिसिट के साथ दूसरा मसला क्या है, अगर डेफिसिट के साथ इन्फ्लेशन है, गो फॉर एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज विच आर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी, जो दोनों रास्ते बंद करती है। इफ आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है विद डेफिसिट, देन यू गो फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जो कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज है, जो सिर्फ इंपोर्ट का रास्ता बंद करके लोगों को डोमेस्टिक में स्विच कर देगी। इससे आप रिसेशन से भी बाहर आ जाओगे और डेफिसिट भी खत्म हो जाएगा। तो पूरा इवैल्यूएशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पूरा आप छाप सकते हो, ठीक है। दिस वाज सेक्शन सी। तो ओवरऑल देखें तो सेक्शन बी और सी दोनों बहुत आसान थे। इसके मॉडल आंसर जब अपलोड होंगे तो काइंडली रीड कर लीजिएगा।